Hello students, today we are here with our next lecture of life process. In this video we will discuss about the stomach. ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस के बारे में डिस्कस किया था. The next organ of alimentary canal is stomach. So we are here to study about the stomach. Stomach is a J-shaped muscular organ. Here shape is like the J alphabet of the English vocabulary. J-shaped structure it is and bag-like muscular organ. Basically, the stomach is divided into three parts. Now, suppose this is the stomach. This is the stomach. This upper part of stomach is called as this part. This part of stomach is called as cardiac stomach, or it is also called as cardia. The middle center large part is called as fundus or fundic, and this part of stomach is called as pylorus or pyloric stomach. Clear? The part of stomach in which the esophagus opens. This is the esophagus. Esophagus stomach के जिस part में आकर खुल रही है, that is called as cardiac stomach. At the junction of this cardiac stomach and esophagus, the sphincter muscles are present. Here the sphincter muscles are present. These sphincter muscles are called as cardiosphincter or esophageal sphincter muscles. Esophageal sphincter muscles. These sphincter muscles prevent the backflow of food into the esophagus. ठीक है, जो फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हमारे स्टमक के अंदर आया है, ये फूड वापस से हमारी ईसोफेगस में ना जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे ईसोफेजियल स्फिंक्टर. Same type of sphincter is also present here at the junction of pylorus and small intestine. यहाँ से हमारे पास ये हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है. ठीक है, तो इस जगह पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है. This sphincter is called as pylorus sphincter. Again, the function of pylorus sphincter is to prevent the backflow of food into the stomach from the small intestine. यहाँ से जो partially digested food होगा, स्टमक के अंदर फूड के पार्शियल डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इस पार्शियल डाइजेशन के बाद यहाँ पर जो फूड कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइम. एक सेमी सॉलिड के फॉर्म में फूड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. ये सेमी सॉलिड टाइप ऑफ फूड इस पाइलोरस स्फिंक्टर से होते हुए कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से वापस फूड हमारे स्टमक में ना जा पाए, इसके लिए यहाँ पे पाइलोरस स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है. क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. स्टमक की जो वॉल है, दिस वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secretes the enzymes. ना, the gastric juice is there. यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है, these gastric glands secretes gastric juice. क्लियर? इस गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास काफी सारे इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक पेप्सिनोजन एंजाइम. It is an inactivated enzyme, and when it reacts with HCl, when the medium of the stomach becomes acidic, then this pepsinogen gets converted into the form of pepsin. It is the activated enzyme. Now this will happen with the help of HCl, because HCl provide the acidic medium inside the stomach. Next enzyme is prorenin enzyme. This prorenin enzyme is also an inactivated enzyme, and it is also gets activated in the acidic medium in renin enzyme. Both of these
these enzymes are proteolytic enzymes. They are helpful in the digestion of protein. ठीक है, इसके बारे में हम डाइजेशन इन स्टमक जब नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, तो वहां पे हम डिटेल स्टडी करेंगे. यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी. स्टमक की वॉल में प्रेजेंट ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स आर आल्सो देयर and these oxantic cells help in the secretion of HCl. Here a highly concentrated HCl is secreted in the stomach. This HCl provide acidic medium to the stomach so that the enzymes can properly activate, because these proteolytic enzymes can activate only in the acidic medium, so they required acidic medium for their proper function, which is provided by the HCl. इसके अलावा हमारे स्टमक की वॉल में कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है. गॉबलेट सेल्स आर आल्सो देयर. These goblet cells help in the secretion of mucus. Mucus plays a very important role because the HCl is highly corrosive. Its pH is about 1.8 to 3. ना स्टमक में जो HCl सीक्रेट हो रहा है इसका pH हमारे पास ऑलमोस्ट 1.8 to 3 है. इट मीन्स हाईली एसिडिक pH इट इज. ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड ये होता है. इट कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक ऑल्सो. ये इतना एसिडिक है कि यदि इसमें इतना कंसंट्रेटेड है, इसमें यदि कोई आयरन नेल या कोई आयरन पीस गिर जाए तो वो भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी डिकम्पोज हो जाएगा. तो इतना हाईली एसिडिक पीएच जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमारे स्टमक की वॉल को भी ये डैमेज कॉज कर सकता है. तो द म्यूकस इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ द स्टमक. दिस इज द इनर वॉल ऑफ स्टमक. ये गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करेंगी, ठीक है, ये हमारे पास गॉबलेट सेल्स है. ये स्टमक की वॉल है. गॉबलेट सेल्स एक थिक लाइनिंग ऑफ म्यूकस इनर साइड पे सिक्रीट करती है, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बनाती है. और ये म्यूकस की इनर लाइनिंग जो थिक लाइनिंग है, इट प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl. ठीक है, तो म्यूकस का फंक्शन क्या होगा हमारे पास? टू प्रिवेंट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ द HCl. क्लियर? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास स्टमक का है. और बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर आप यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 नाम से एक चैप्टर है जिसमें काफी डिटेल आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है. ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है, तो 10th क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है. दिस इज इनफ फॉर द 10th क्लास. ठीक है, तो यदि बहुत डिटेल आपको इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उसमें काफी डिटेल इसे एक्सप्लेन किया गया है. आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक. बहुत अच्छे से आपको इसको स्टडी करना है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द different parts of small intestine and large intestine. After that the process of digestion we will discuss. Thank you very much.